کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن سے بات چیت تو ہو سکتی ہے مگر این آر او پر کوئی بات نہیں ہوگی، ان سے بات چیت شروع کر دیں، ان کے رہنما اپنے مقدمات لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ 40 لیگی ارکان سرکاری زمینوں پر قابض ہیں۔ اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم طاقت کا استعمال کریں لیکن حکومت طاقت کا استعمال نہیں کرے گی۔ فوج کی جانب سے ہر پالیسی پر مکمل حمایت حاصل رہی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے صحافیوں سے ملاقات میں کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ این آر او کے علاوہ ہر چیز پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ اپوزیشن استعفے دے گی تو نئے الیکشن کرا دیں گے۔ اپوزیشن پر اعتماد ہے تو میں بھی پر اعتماد ہوں۔ اپوزیشن سے بات چیت کریں تو ان کے رہنما اپنے مقدمات لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اپوزیشن نیب کا خاتمہ چاہتی ہے تاکہ ان کے کیسز ختم ہو جائیں۔ 40 لیگی اراکین سرکاری زمینوں پر قابض ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ فوج کی جانب سے ہر پالیسی پر مکمل حمایت حاصل رہی ہے۔ چاہتا ہوں کہ اسمبلی میں سوالات کا جواب دوں لیکن مجھے بات بھی نہیں کرنے دی جاتی۔ ہم اپوزیشن سے سوائے احتساب کے ہر موضوع پر بات کرنے کو تیار ہیں۔ کچھ ممالک پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلم ممالک کو غیر مستحکم کیا گیا۔ پاکستان میں بھی ایسا کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کرونا وائرس خطرناک ہوتا جا رہا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مزید کیا تباہی پھیلائے گا۔ اس موقع پر اپوزیشن انتشار پھیلانا چاہتی ہے۔ اپوزیشن چاہتی ہے کہ ہم طاقت کا استعمال کریں لیکن حکومت طاقت کا استعمال نہیں کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی مالیاتی فنڈ کے پاس نہ جانے کو اپنی سب سے بڑی غلطی تسلیم کیا اور کہا آئی ایم ایف کے پاس بر وقت نہ جانا سب سے بڑی غلطی تھی، ہمیں آئی ایم ایف کے پاس 10 مہینے تاخیر سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپریل 2021 میں سینٹ الیکشن کے بعد بلدیاتی الیکشن کرائیں گے۔ بیوروکریسی کی پرانی سیاسی وابستگی کی وجہ سے پنجاب میں مسائل ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے انتہائی اہم اجلاس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے لیگی ارکان اسمبلی کو استعفے مولانا فضل الرحمان کو جمع کروانے کی ہدایت کر دی ہے۔ لانگ مارچ کے خاتمے پر مولانا فضل الرحمان استعفے اسپیکر کو پیش کریں گے۔ تمام جماعتوں کی جانب سے نواز شریف کی تجویز کی حمایت کی گئی۔ مولانا فضل الرحمان نے جیل بھرو تحریک کی تجویز دے دی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے انتہائی اہم اجلاس میں مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے لیگی اراکین اسمبلی کو استعفے مولانا فضل الرحمان کو جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ لانگ مارچ کے خاتمے پر مولانا فضل الرحمان استعفے اسپیکر کو پیش کریں گے۔ تمام جماعتوں کی جانب سے نواز شریف کی تجاویز کی حمایت کی گئی۔ اسلام آباد میں پی ڈی ایم کے اجلاس میں سربراہ اپوزیشن اتحاد مولانا فضل الرحمان نے جیل بھرو تحریک کی تجاویز دی اور کہا پی ڈی ایم کے سربراہان یا اہم رہنماؤں میں سے کسی کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس آپشن پر غور کیا جائے گا۔ تمام جماعتیں اپنے کارکنوں کو اس حوالے سے تیار رکھیں۔ گرفتاریوں کی صورت میں احتجاجی لاہے عمل اور قومی شاہراہوں کی بندش بھی کی جائے گی۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں نئے سال کے آغاز میں ہی اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ تجاویز بھی سامنے آئے کہ استعفے لانگ مارچ کے بعد دیے جائیں اور بر وقت اس آپشن کا استعمال کیا جائے۔ دوسری جانب پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ لاہور کا جلسہ مینار پاکستان میں ہی ہوگا۔ وزیر اعظم ڈائیلاگ کی بات نہیں کر رہے، وہ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کی مذاکرات کی دعوت مسترد کرتی ہیں۔ 31 دسمبر تک تمام اراکین اسمبلی اپنے استعفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کروائیں گے۔ استعفے دے دیے تو پی ٹی آئی کی طرح واپس نہیں لیں گے۔ لانگ مارچ کب ہوگا اس کا فیصلہ 31 دسمبر کو کریں گے۔ حکومت کو اب دھکا دینے کی دیر ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا سربراہی اجلاس آج یہاں اسلام آباد میں منعقد ہوا۔ تمام پارٹی سربراہان نے اپنے اپنے ٹیم کے ساتھ اجلاس میں شرکت کی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے سے جناب میاں نواز شریف صاحب، جناب آصف زرداری صاحب اور جناب اختر جان مینر صاحب نے شرکت کی۔ سب نے بڑے عزم اور بڑے حوصلے کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ 13 دسمبر کو لاہور میں مینار پاکستان پر ہی جلسہ ہوگا اور حکومت نے
اگر کسی قسم کی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ملتان سے بھی کہیں زیادہ اس کا برا حشر کر دیا جائے گا۔ آج جعلی وزیر اعظم نے پھر کچھ ایسی باتیں کی ہیں جیسے کہ وہ نشے میں بول رہے ہوں اور حزب اختلاف کو ڈائیلاگ کی دعوت دے رہے ہیں۔ ڈائیلاگ کی دعوت نہیں، وہ ہم سے NRO مانگ رہے ہیں۔ ہم نے ڈائیلاگ کی ان کی اس درخواست کو مسترد کر دیا۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ 31 دسمبر تک تمام پارٹیوں کے پارلیمانی اراکین اپنے استعفے پارٹی قائدین کے پاس جمع کرا دیں گے، قومی اور صوبائی اسمبلی دونوں۔ کل اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوگا۔ اس اجلاس میں ملک کے اندر پیا جام ہڑتال، شٹر ڈاؤن اور ملک کے مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹر میں جلسوں اور مظاہروں کا شیڈول طے کیا جائے گا، اور ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کب کیا جائے، اس کی تاریخ کا تعین بھی کیا جائے گا۔ مریم نواز کہتی ہیں PDM میں سارے آپشن زیر غور ہیں۔ لاہور جلسے سے حکمرانوں کی جان نکلی ہوئی ہے۔ PDM کی تحریک عوامی ہے، یہ نہیں رکے گی، حکومت اب خود جانے والی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا، مہنگائی اور بے روزگاری سے تنگ عوام PDM اور نواز شریف کی طرف دیکھتے ہیں۔ تحریک کو عوام لیڈ کر رہی ہے۔ کل ماشاءاللہ لاہور جس طرح باہر نکلا ہے وہ پوری دنیا نے ٹی وی اسکرینز پہ دیکھا ہے، اور یہ میرے لیے بھی نکلے ہیں، اللہ کا شکر ہے، نواز شریف کا قلعہ ہے لاہور۔ لیکن جس طرح لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں مہنگائی سے، جس طرح لوگ بے روزگاری سے، لاقانونیت سے تنگ آئے ہوئے ہیں، اس حکومت کی نااہلی سے اور اس حکومت کی نالائکی سے تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ لوگ PDM میں اور نواز شریف میں اپنی نجات دیکھ رہے ہیں۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ کل کے جلسے کے بعد لاہور کے تھانوں میں ایک بار پھر مقدمات کے اندراج کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس حکومت کی جان نکلی ہوئی ہے لاہور کے جلسے سے۔ ملتان کے جلسے میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا، گجرانوالہ کے جلسوں میں بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک جلسے میں 3,000 2200 FIR کٹی ہو؟ کبھی دیکھا ہے اتنی FIRs کاٹی کہ FIR کا خوف ہی نہیں ہے؟ یہ حکومت اب خود جانے والی ہے تو اس کی FIR کوئی کہیں سٹینڈ نہیں کرتی۔ ادھر مینار پاکستان میں جلسے سے کچھ روز قبل PHA کی جانب سے پارک میں پانی چھوڑ دیا۔ مریم نواز نے اپنے ٹویٹ میں ویڈیو شیئر کر دی۔ PHA نے الزام مسترد کر دیے۔ مسلم لیگ نون نے لاہور جلسہ روکنے کے لیے حکومت پر مینار پاکستان میں پانی چھوڑنے کا الزام لگا دیا۔ مریم نواز نے پانی کے فوٹیج ٹویٹ پر شیئر کر دی ہے۔ چیئرمین PHA یاسر گیلانی کہتے ہیں کہ آج مینار پاکستان کے ایک پلاٹ میں معمول کے تحت پانی لگایا گیا۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں جلسے میں 3 دن باقی ہیں، آپ چاہتے ہیں گھاس جل جائے، آپ کو جلسے کے لیے مینار پاکستان کھلا ملے گا، بھاگنے نہیں دیں گے۔ لیگ رہنما خواجہ سعد رفیق کہتی ہیں کہ عمران خان ووٹ چوری کر کے اقتدار میں آیا، ایک تو چوری اور پھر سینہ سوری، ایسا نہیں چلے گا۔ وطن عزیز کو ملک میں تنہا کر دیا گیا۔ لاہور میں ورکر سے خطاب کرتے ہوئے سعد رفیق نے کہا، لا قانونیت، بھوک اور غربت بڑھ رہی ہے۔ جیلیں مخالفین سے بھر دی گئی ہیں۔ اسمبلیاں عمران خان کے آمرانہ رویے سے اپنی افادیت کھو چکی ہیں۔ یہ انصاف کے نام پر انصافی ٹھگ ہیں۔ عمران خان کے آمرانہ رویے کی وجہ سے اپنی افادیت کھو چکی ہیں۔ ان اسمبلیوں میں بیٹھنا وقت کا ضیاع ہے، وقت ضائع اور نہیں کرنا۔ پاکستان کے لوگ فری اور فیئر الیکشن چاہتے ہیں، پاکستان کے لوگ اس حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، پاکستان کے لوگ ووٹ کی طاقت سے اصلی تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ جھوٹی تبدیلی ہمیں قابل قبول نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس تبدیلی کو کون تسلیم نہیں کرتا اس جھوٹی تبدیلی کو؟ ہم اس کو تبدیلی کو مانتے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ نام نہاد نیا پاکستان نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا پرانا پاکستان چاہیے جس میں موٹر ویز بنتی تھیں، جس میں لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی، جس میں مری ہوئی ریل پہ چل پڑی، جس کے اندر پاکستان دنیا میں اس کا وقار بڑھ رہا تھا، لوگوں کا روزگار چلنا شروع ہو گیا تھا،
लोगों को तरक्की नजर आनी शुरू हो गई थी। मेट्रो बसें बनती थी, ऑरेंज लाइन बनती थी, जिसमें शहर बदल रहे थे। आज क्या है? आज फिर हमारा शहर कूड़े करकट के ढेर में बदल गया। इन्होंने अरबों का नुकसान किया। ऑरेंज लाइन बर वक्त नहीं बनने दी। हमने मेट्रो बसें बनाई तो कहते थे जंगला बस, और तुमने बीआरटी बनाई। कभी बस खड़ी हो जाती है, कभी जल जाती है, कभी बिगड़ जाती है। क्या लोग हो तुम? ये इंसाफी ठग कौन है? ये इंसाफ के नाम पे ठग है। और सबसे बड़ा ठग कौन है? कौन है? क्या कह रहे हैं? मीडिया वालों को बताओ, सबसे बड़ा ठग कौन है? बुलेटिन में बात करेंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमने इस्तीफे देने हैं, कैसे रोकोगे? कसम खा ली कि अब धांधली वाले निजाम को नहीं चलने देंगे। जो असेंबलियां आवाम की खिदमत नहीं करती उनमें बैठना भी गुनाह है। चोर दरवाजे से हुक्मरान काबिल कबूल नहीं है। 13 दिसंबर का जलसा लाहौर के बासियों का इम्तिहान है। अपने घरों से निकलें और फैसला कुन जलसा बना दें। 2012 में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और मैंने कहा था कि इमरान खान जो है डबल शाह है, फ्रॉडी है। इसने मेरे खिलाफ हद तक इज्जत का दावा कर दिया कि इसने मुझे डबल शाह कह दिया। आज सारा पाकिस्तान उन्होंने डबल शाह कह रहा है कि बनारसी ठग कह रहे हैं, किधर खिलाफ हद तक इज्जत का दावा कर रहे हैं। कहते हैं कि यादगारे पाकिस्तान में इसने पानी छोड़ दिया है हमारा जलसा रोकने के लिए। हाली तो इस्तीफे देने ने उन्होंने किस तरह रोके ला जाएगा। हमने इस निजाम को नीचे लाना, इसको गिराने की जो है कसम खाई है। हम इस निजाम को नहीं चलने देंगे। उसके लिए ये एक धांधली वाला निजाम, एक निजाम जो है जो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है। पाकिस्तान के तमतूलो अर्ज से सारे फ्रॉडिये और ठग इकट्ठे करके तो हमारे हुक्मरान बना दिए गए हैं। हम इस निजाम को नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह ताला। मगरिब का वक्त है, मैं आपको कसम खा के कहता हूं कि इस निजाम को नहीं चलने देंगे हम जो है। उसके लिए हमें अगर असेंबलियों से इस्तीफे देने पड़े तो ये बड़ी थोड़ी कीमत है इनसे जान छुड़ाने के लिए। जो असेंबलियां डिलीवर नहीं कर रही, जो असेंबलियां आपके लिए कोई खिदमत अंजाम नहीं दे रही, महंगाई को नहीं रोक सकती, करप्शन को नहीं रोक सकती, आपके हुकूक गसब किए जा रहे हैं उसको नहीं रोक सकती। ऑपोजिशन रहनुमा कहते हैं अवाम की मुश्किलात पीछे छोड़कर पार्लिमानी निजाम यकतरफा नहीं चल सकता। हर बहरान हुकूमत ने खुद पैदा किए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत की नाकामी से मईशत बर्बाद हो रही है। हम निजाम की खराबी की बात कर रहे हैं, इक्तदार की नहीं। हुकूमत से बात करने का कोई फायदा नहीं, बात उनसे होगी जो सियासत पर असर अंदाज हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा पीडीएम तमाम सियासी जमातों का इत्तेहाद है। इमरान खान और पीटीआई एक तरह खड़े हैं। इमरान खान और हुकूमत ये समझते हैं कि वो सब कुछ तनहा कर लेंगे। पीडीएम के फैसलों पर पीपल्स पार्टी अमल करेगी। आपको बताएं कि रैलियों और कॉर्नर मीटिंग्स में कोरोना एसओपीज और साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी, ट्रैफिक ब्लॉक करने और इश्तियाल अंगेज तकारीर करने के इल्जामात पर मरियम नवाज समेत 700 से ज्यादा लीगी रहनुमा और कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। एक तरफ अपोजिशन 13 दिसंबर के जलसे की कामयाबी के लिए भरपूर जोर लगा रही है तो दूसरी जानिब हुकूमत ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज समेत मुतादिद रहनुमाओं और सैकड़ों कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। दूसरी तरफ बादामी बाग में आतिशबाजी और रोड ब्लॉक करने पर सईद खान समेत 100 से ज्यादा नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीडीएम रहनुमा जज्बाती हो गए, उनके इस्तीफों से जमहूरियत को फायदा नहीं होगा। अपने बयान में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि धरने
और जलसों से हुकूमतें नहीं जाती। 1970 के बाद जितने भी इलेक्शन हुए हारने वालों ने तस्लीम नहीं किया। पीडीएम रहनुमा जज्बाती हो गए हैं। उनके इस्तीफों से जमहूरियत को फायदा नहीं होगा। पीडीएम आईनी रास्ता इख्तियार नहीं कर रही। कोरोना से मुतल्लिक शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान कोरोना की वबा से दो चार है। कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है। इस वबा से हलाकतें बढ़ती जा रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन रहनुमा सियासी पनाह गुज़ीन है, आवाम को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर के लोगों से दरख्वास्त है कि उनके झूठ और फरेब में न आए, नौसरबाजों से दूर रहें। शिबली फराज ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपोजिशन सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक देखने की ख्वाहिशमंद है, लेकिन हम इक़्तिदार नहीं बल्कि मुल्क बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलसल हुक्मरानी करने वालों को हारने पर धांधली याद आ गई। हमारा लीडर करप्शन नहीं करता और ना करने देता है। जिस गैर जिम्मेदारी का सबूत अपोजिशन दे रही है, जिस बेहिसी का सबूत अपोजिशन दे रही है, ये न मुल्क के मफाद में है न अवाम के मफाद में है। वो लोग जो कि जिनका कि कोई एजेंडा नहीं है, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है, और ये वही लोग हैं जो कि पिछले 11 साल से मुसलसल हुक्मरानी कर रहे थे, और आज जबकि नताइज उनकी मर्जी के नहीं हुए, जब इलेक्शन वो हार गए, तो एक बड़े ही गैर मंतकी तौर पर 2 साल तक खामोश रहे, और अब उनको ख्याल आया कि जी इलेक्शन में धांधली हुई थी। जबकि सब जितने भी इंटरनेशनल इदारे हैं उन्होंने ये साबित किया है कि जो इस 2018 के इलेक्शंस थे वो 2013 से बहुत बेहतर थे, और उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये हुआ कि देखें जी जो इलेक्शंस हैं और उनके नताइज वो किसी की मर्जी या मंशा के मुताबिक नहीं हो सकते। जिस तरह के जजेस कि जो फैसले आपके फेवर में हो वो ठीक है, और जो आपके खिलाफ हो वो ठीक नहीं है। अपोजिशन चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक देखना चाहती है। वो देखना ये चाहती है कि अगर फजलुर रहमान इलेक्शन हार जाए तो वो इलेक्शन धांधली ज़्यादा था, और उनका बेटा इलेक्शन जीत जाए तो वो इलेक्शन ठीक था। अभी आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं MNA मलिक अफजल खोखर, MPA सैफुल मलूक खोखर और राना मुनव्वर गौस ने अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत को जमा करा दिए हैं। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली की जानिब से इस्तीफे देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। सरगोदा से MPA राना मुनव्वर गौस पार्टी क़यादत को पहले ही अपना इस्तीफा जमा करवा चुके हैं, जबकि अब नून लीग के MNA मलिक अफजल खोखर, MPA सैफुल मलूक खोखर ने भी अपने इस्तीफे जमा करवा दिए। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली आगा रफीकुल्लाह और MPA अली हैदर गिलानी ने अपने इस्तीफे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को पेश कर दिए। अहम खबर से आपको अपडेट करें। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में सूबाई टास्क फोर्स बराए कोरोना का इजलास। शुरा इजलास का कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। आपको बता रहे हैं कि कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में सूबाई टास्क फोर्स बराए कोरोना का इजलास। वजीर आला महमूद खान, कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद और सिविल और मिलिट्री हुक्काम की शिरकत। ISPR के मुताबिक शुरा इजलास का कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों और देखभाल के उमूर से आगाह किया गया। वजीर आला महमूद खान का कोरोना के फैलाव के खिलाफ इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। आपको बता रहे हैं कि ISPR के मुताबिक शुरा इजलास का कोरोना SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर। अस्पतालों में कोरोना के मरीजों और देखभाल के उमूर से आगाह किया गया। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। रंगों की दुनिया से सितारों की कहकशां, क्या है इन क्या है आउट, कौन होगा हीरो कौन होगा जीरो, फैशन के ट्रेंड और सितारों की खट्टी मीठी बातें बताऊंगा TV टुडे पर। मैं हूं शजोद्दीन। खबर। कोरोना केसेस का ताल्लुक बड़े शहरों से है। पीडीएम कोरोना फैलाव का जरिया बनकर आवाम की जान के दर पे भी है। ये मुश्किल को दोबारा दरगो हालात में पहुंचाना चाहते हैं। शहबाज गिल ने कहा साजिशों में
मसरूफ करप्ट टोला पाकिस्तान की तरक्की रोकने के दरपे पे है। इश्तियाल अंगेजी का सहारा लेकर और कानून की खिलाफ वर्जी को बतौर आला इस्तेमाल करके घटिया सियासत की जा रही है। बुलेटिन में मजीद आगे बढ़े और अब कुछ बात करते हैं कातिल वायरस की। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक होने लगी। लापरवाही और बेहतियाती ने कोरोना को बेकाबू कर दिया। 24 घंटों में मजीद 89 मरीजों के इंतकाल ने खतरे की घंटियां बजा दी। अमवात की तादाद 8,487 हो गई। मजीद 2,885 अफराद में कोरोना की तशखीस से मरीजों की तादाद 4,23,000 हो गई। 3,70,474 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना से एक रोज में 89 मरीजों का इंतकाल हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1,419, आजाद कश्मीर में 182 और इस्लामाबाद में 341 मरीज इंतकाल हो चुके। 24 घंटों में मजीद 2,885 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। खैबर पख्तूनख्वा में 50,078, गिलगित बल्तिस्तान में 4,746, आजाद कश्मीर में 7,390 मरीज हो चुके हैं। मजीद कोरोना वायरस की ही बात करें। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 15,52,000 हो गई। मरीजों की तादाद 6,80,00,000 हो गई। 4,71,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका और यूरोप में ताहाल कोरोना को कंट्रोल ना किया जा सका। अमेरिका में 2,90,474, भारत में 1,41,000, रूस में 44,160, अफगानिस्तान में 1,820 और सऊदी अरब में 6,000 अमवात हो चुकी हैं। आपको बताएं कि वजारत सेहत कोरोना वैक्सीन जल्द अज जल्द मुल्क में लाने के लिए मुतहर्रिक हो गई है। पाकिस्तान में ये दवा मुतवक्के तौर पर पहली छमाही में दस्तयाब होगी। वजारत सेहत कोरोना वैक्सीन बनाने वाले ममालिक से मुसलसल राबिते में है। वैक्सीन की दस्तयाबी के बाद पहले मरहले में उसे हेल्थ वर्कर्स और बूढ़े चेहरों को लगाया जाएगा। पाकिस्तान ने वैक्सीन की मुफ्त और रियायती खरीदारी के लिए भी राबिते किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एक बयान कहा कि कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए अगले चंद दिनों में हतमी फैसला कर लिया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स फ्रंट लाइन से मुहलक वबा का मुकाबला कर रही है, इसलिए सबसे पहले उन्हें वैक्सीनेशन मुहैया की जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के बड़े प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। तमाम अजला में अगले साल के आखिर तक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फराहम करने का हदफ मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे के हर शहरी को हेल्थ कवरेज फराहम करने का असूली फैसला कर लिया गया। इस मौके पर उस्मान बुज़दार का कहना था, पहले मरहले में पंजाब के 2 अजला में मुकम्मल हेल्थ कवरेज फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक इंसाफ सेहत कार्ड हर शहरी तक पहुँचाएंगे। इलाज मुआलजे की सहूलत हर शहरी का बुनियादी हक और हुकूमत का फर्ज है। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान पंजाब की सियासत के बारे में अपना अलहदा ही ख्याल रखती हैं। वो कहती हैं, पंजाब का सियासी कल्चर सोतो पी के सोने वाला नहीं, बल्कि यहाँ तो हलचल ही रहती है। कुछ अरसे से ये हलचल तो यकतरफा थी। हुकूमत का फ्रंट फुट पर आकर खेलना जरूरी था, इसलिए अपनी टीम के साथ काम कर रही हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब की मामले खसूसी बराए इत्तलात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि पंजाब में आपने आते ही हलचल मचा दी है, एक दिन में 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसा लग रहा है? बोर तो नहीं हो रही इन प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, पंजाब का जो कल्चर है, मजाज है, ये सत्तू पी के सोने वाला नहीं है। यहाँ पे आपको पता है कि हलचल रहती है, तो यहाँ एक तरफा हलचल थी, यहाँ पे अपोजिशन ने हलचल मचाई हुई थी, यहाँ पे हुकूमत का फ्रंट फुट पे आके खेलना ज़रूरी था, और उस पंजाब आजमाई में हुकूमती पॉलिसीज़ और हुकूमती नुक्ता नज़र ज़रा टीम वर्क से चलाना ज़रूरी था। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में हुकूमती पॉलिसीज़ को आप तक पहुंचाने की कोशिशों में मसरूफ़ हूँ। जब आप वफाक में थी तो आपने खुद कहा था कि मैं तो रात को नींद भी पूरी तरह से नहीं लेती, तो अब जो पंजाब में क्या सूरत हाल है? यही सूरत हाल है, क्योंकि अभी तक सारा दिन में मुझे
अपने घर वालों से बात करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि जब मैं अपने कमरे में पहुंचती हूं तो वो सो चुके होते हैं, और सुबह जब मैं उठी होती हूं तो वो सो रहे होते हैं। आपका क्रिकेट का भी आपको बड़ा शौक है आपको, मैंने आपकी पुरानी वीडियोस देखी, उसमें आप खुद चौके छक्के लगा रही हैं, तो क्रिकेट और सियासत में से किसको एक को? देखिए, क्रिकेट मेरा पैशन है, और क्रिकेट ही ने मुझे सिखाया हार के खड़ा होना, और हार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो क्रिकेट ने सिखाई है, हारना और फिर उस हार से सीखना और फिर खड़े हो जाना अगले मैच के लिए। तो ये क्रिकेट का कमाल है कि मैं गिरती हूँ फिर खड़ी हो जाती हूँ। साहिबा, एक ये भी सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं कि जो मरियम नवाज और बिलावल हैं, इनका जो सियासी मुस्तकबिल है वो क्या देखती हैं आप? ये दोनों मोरूसी सियासत के अलंबरदार हैं, अपनी ज़ाती स्ट्रगल कोई नहीं है, सिर्फ ये शनाख्त है कि एक का बेटा दूसरी की बेटी है। अपना तारुफ पैदा करें, मैं देखना चाहती हूँ कि ये अपने ज़ोरे बाजू से इस सियासत के मैदान में पंजा आजमाइयाँ करें। ये ख़ानदानी शनाख्त के साथ आप वक्ती तौर पे तो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग आपको इसमें सस्टेन करना मुश्किल है। अपनी जद्दोजहद जो है, आप अभी आए हैं सियासत में, ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों का वो बिस्तर है जहाँ ज़्यादा कांटे चुभते हैं, फूल कभी कभी नसीब में आते हैं। तो इसलिए वो इस वक्त चूँकि वो फूलों के मज़े लेके आए हैं, तो कांटों के बिस्तर को, उस तकलीफ़ को महसूस करना ज़रा मुश्किल काम है। मैं ये समझती हूँ कि दोनों सियासत के मैदान के अभी अनाड़ी हैं, उन्हें खिलाड़ी बनने में टाइम लगेगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी तब्दीली हुकूमत के ट्रेडमार्क्स बन चुके हैं। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि कश्मीर पर पसपाई मशत की बर्बादी तक हुक्मरानों ने नाकिस कारकर्दगी की हर मिसाल कायम की। वजीर आज़म बुलंदबाग दावे करें या धमकियां दे, अवाम उनकी कारकर्दगी को जान चुके। मुल्क को इस्लाम की तजुर्बागाह बनाने के लिए हासिल किया गया जमहूरी और मार्शल लॉज के अदबार में इस्लामी पाकिस्तान के लिए किसी ने कोशिश नहीं की। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि जमात इस्लामी ने जालिम अशरफिया के खिलाफ जदोजहद का आगाज कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन जमातों ने तरक्याती फंड्स और दीगर हकूक के लिए वजीर आला हाउस के सामने एहतजाजी कैंप लगा दिया। वजीर आला हाउस की जानिब से चाय और केक से तवाज़ो की गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन जमातों ने वजीर आला हाउस के सामने कुर्सियां सजाकर एहतजाजी कैंप लगा दिया। साउंड सिस्टम पर मुख्तलिफ पार्टियों के तराने भी बजाए गए। एहतजाजी कैंप में JUIANP, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमात इस्लामी समेत दीगर पार्टियों के रहनुमा शरीक हुए। शुरका ने कहा कि सूबे को माली तौर पर बदहाल कर दिया है, अपोजिशन को दीवार से लगा दिया गया है। तरक्याती फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम किसी सूरत कबूल नहीं। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं का एहतजाज के दौरान वजीर आला हाउस की जानिब से चाय और केक भी पेश किया गया। उधर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने स्कूल बैग्स बिल मंजूर कर लिया। हर क्लास के लिए अलग अलग बैग का वजन तयन होगा। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने मंजूर किए जाने वाले बिल के मुताबिक पहली जमात के तलबा के लिए स्कूल बैग का वजन 2.4 किलोग्राम, दूसरी जमात के लिए 2.6 किलोग्राम और तीसरी क्लास के लिए 3 किलोग्राम होगा। हाई सेकेंडरी तलबा के लिए बैग का वजन 7 किलो रखा गया है। स्कूल बैग्स एक्ट की खिलाफ वर्जी पर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर निजी तालीमी इदारों को 2 लाख रुपए तक जुर्माने करने की तजवीज दी गई है। सूबाई वजीर तालीम शहराम खान तरकई का कहना है कि बच्चों में भारी स्कूल बैग से मुकम्मल निजात मिलेगी। स्कूल बैग वजन कम होने से बच्चों की बेहतर ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा होगी। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को पेश न होने पर इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकला को नैब के गवाहों पर जिरा के लिए दोबारा तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत की। जेल हुकाम ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर को पेश किया।
दौरान समाअत अदालत ने मुलजिमों के वकील के पेश ना होने पर रिमार्क्स दिए कि ऐसे तो ये केस कभी नहीं चलेगा, जिरा के लिए आखिरी मौका दे रहा हूं। जज जवादुल हसन ने ये रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज को पेश होने के लिए दिया गया वक्त खत्म हो गया है, लिहाजा अदालत नुसरत शहबाज को इश्तिहारी करार देती है। सोने की कीमत के उतार चढ़ाव के बारे में आपको बताएं तो मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में एक ही दिन 1300 रुपए का इजाफा हो गया। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $33 इजाफे के साथ $1,864 पर पहुंच गया। मुल्क में 24 क़ीरात सोने की फी तोला कीमत 1300 रुपए इजाफे के बाद 1,11,300 रुपए हो गई, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1,115 रुपए इजाफे के बाद 95,422 रुपए पर पहुंच गई। पाकिस्तान में 24 क़ीरात चांदी की फी तोला कीमत बगैर किसी इजाफे के साथ 1,220 रुपए है। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से। सानिहा क्राइस्ट चर्च के इंक्वायरी रिपोर्ट में बास खामियों के निशानदही पर न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन ने माफी मांग ली। सानिया क्राइस्ट चर्च की रिपोर्ट में खामियां सामने आने पर न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन ने माफी मांग ली। वाक़े के बाद कायम रॉयल कमीशन ऑफ इंक्वायरी की हाल ही में जारी होने वाली रिपोर्ट में कहा गया कि न्यूजीलैंड सिक्योरिटी इदारों की तवज्जो मुमकिना दहशत गर्दी रोकने की तरफ मरकूज थी। इस दौरान सफेद फॉर्म बालादस्ती का नारा लगाते हुए 51 अफराद को शहीद किया। इंक्वायरी कमीशन ने हमला आवर ऑस्ट्रेलियाई शहरी ब्रेंटन टेरेंट को असले का लाइसेंस देते वक्त सिक्योरिटी निकात नजरअंदाज करने पर पुलिस को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। वेनेजुएला के पार्लिमानी इंतखाबात पर अमेरिका और रूस की एक दूसरे पर बयानबाजी। अमेरिका ने हालिया इंतखाबात को फ्रॉड और रूस ने शफाफ करार दिया। वेनेजुएला के पार्लिमानी इंतखाबात पर अमेरिका और रूस की एक दूसरे पर बयानबाजी। अमेरिकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने वेनेजुएला के इंतखाबात को फ्रॉड करार देते हुए कहा कि सदर मादुरो के इत्तेहादियों ने धांधली की है। दूसरी जानिब रूस ने वेनेजुएला के पार्लिमानी इंतखाबात को शफाफ करार देते हुए कहा कि इलेक्शन में हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन की जमातों को वोटर्स के सामने अपना अपना एजेंडा रखने का पूरा मौका मिला। मादुरो की मुत्तहिदा सोशलिस्ट पार्टी और उसके इत्तेहादियों ने कौमी असम्बली में 67 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की है। बरतानिया में कोरोना वैक्सीन लगाने के अमल का आगाज कर दिया गया है। उम्र रसीदा अफराद को तरजीह दी जा रही है। 90 साला शिमाली आइलैंड की रिहायशी वैक्सीन लगवाने वाली पहली खातून बन गई। कोरोना वैक्सीन पहले उम्र रसीदा अफराद और तिब्बी शोबे से वाबस्ता मुलाजमीन को दी जाएगी। मार्गरेट कैनन क्लिनिकल ट्रायल के बाद पहली खातून बन गई जिसे कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। खातून का ताल्लुक शिमाली आइलैंड से है। उन्हें सिटी यूनिवर्सिटी अस्पताल में वैक्सीन लगाई गई। मलिका बरतानिया और उनके शोहर ने फैसला किया है कि वैक्सीन पर आवाम का एतमाद कायम करने के लिए वो खुद भी वैक्सीन लगवाएंगे। शाही जोड़े को उम्मीद है कि उन्हें कोरोना वैक्सीन इस्तेमाल करते देकर आवाम वैक्सीन लगवाने से इनकार नहीं करेंगे। बरतानी वजीर सेहत का कहना था कि आवाम तक वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए क्लिनिक हफ्ते के 7 रोज खुले रखे जाएंगे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पुरअसरार बीमारी से 450 से ज्यादा अफराद अस्पताल पहुंच गए। मरीजों में एक शख्स हलाक हो गया। आंध्र प्रदेश के जिला मशरकी गुरुद्वारे में सैकड़ों अफराद को पुरअसरार बीमारी का सामना है। मुतासरा अफराद को कैद, दस्त और बेहोशी की शिकायत पर शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कर दिया गया। मेडिकल टीमों ने बीमारी के बारे में जांचने के लिए पानी और दूसरी अशिया के टेस्ट किए हैं। बीमारी से मुतासरा लोगों में बड़ी तादाद बच्चों की है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे। खबर सबसे पहले। झूठ नहीं सिर्फ सच, मुबालगा नहीं सिर्फ हकायक, प्रोपेगेंडा नहीं सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, अपोजिशन के बयानात,
सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी, खबर सबसे पहले।